Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good and safe at home. Yes, beta, I'm doing study regularly as well. So, yesterday we have completed about the revenue expenditure and capital expenditure. So, today we are going to start our next topic from this chapter. Today we will complete this chapter and tomorrow we will start our unit 5th and chapter 11. So let's proceed for today. Yes, dear students, the first question is, what is the difference between revenue receipts and capital receipts? So as I told you, revenue receipts means recurring in nature and capital receipts means non-recurring in nature. Revenue receipt doesn't impact the assets and liabilities of the government, and capital receipts always impact the status of assets and liabilities of the government. So an example you can take as a difference. Then what is the difference between revenue expenditure and capital expenditure? So revenue expenditure means beta which does not change the status of assets and liabilities, जो रिकरिंग नेचर के होते हैं बट उनसे एसेट्स लाइबिलिटीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड having non-recurring in nature and is these are always impact the assets and liabilities of the government. And next you can put the example for difference. Next is, what is the difference between revenue budget and capital budget? Revenue budget includes revenue receipts and capital revenue receipts and revenue expenditure, and capital budget includes capital receipts and capital expenditure. Revenue budget does not impact the status of assets and liabilities of the government. Capital budget always impact the status of assets and liabilities of the government. Revenue budget mainly focus on the revenue and welfare of the government, but capital budget always impact the GDP growth of the country. So dear student, these are the simple difference between revenue receipts, revenue capital receipts, and then revenue expenditure, capital expenditure, revenue budget and capital budget. So now what is next question for today? That what is budget deficit? Budget deficit means that, okay, first of all tell me that when is budget in equilibrium? Budget कब equilibrium में होगा? So budget equilibrium means when the total expenditure of the government equals to total receipts. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके रिसिप्ट्स के इक्वल. अगर गवर्नमेंट के पास 1000 रुपीज़ है है तो उनके एक्सपेंडिचर भी कितने होंगे बेटा? इट शुड बी 1000. बट डेफिशिट मीन्स दैट बोथ आर नॉट इक्वल. दोनों इक्वल नहीं है. बोथ आर नॉट इक्वल मीन्स मे बी या तो ज़्यादा है या कम है, बट डेफिशिट का मतलब तो सिर्फ कम ही होता है. तो बजट डेफिशिट मीन्स इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर व्हेन बजट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन द बजट रिसिप्ट्स. एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसिप्ट्स कम है. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ बजट डेफिशिट नॉर्मली. सो बेटा, हियर आर द 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिशिट. एंड व्हाट आर द बजट डेफिशिट? Yes, there are the 3 types of budget deficit. One by one we will explain. We will learn about that. First is revenue deficit, second fiscal deficit, third primary deficit. So what is revenue deficit? Revenue deficit means it is a part of revenue budget only. और revenue budget में सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, revenue expenditure और second revenue receipts. Okay, so deficit means revenue expenditure are greater than revenue receipts. एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है, तो दिस सिचुएशन इज़ नोन एज रेवेन्यू डेफिशिट. सो डियर स्टूडेंट, इट मीन्स गवर्नमेंट अपने डेली के एक्सपेंस भी पूरे नहीं कर पा रही अपने रिसिप्ट से, तो वो क्या करेगी? इट विल यूज़ द कैपिटल रिसिप्ट्स. और अगर कैपिटल रिसिप्ट्स एक बार यूज़ हो गई तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि कैपिटल रिसिप्ट्स यूज़ करने से हम अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे. तो इससे बचने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं. गवर्नमेंट हैज़ 3 ways टू मैनेज द रेवेन्यू डेफिसिट. क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को उस टाइम पर अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है? तो फर्स्ट इज़ बोरोइंग्स. गवर्नमेंट को उधार लेना चाहिए, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. सेकेंड, डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट को कोई ना कोई अपने शेयर्स या फिक्स एसेट सेल करनी होगी. इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. इट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल रिसिप्ट्स यूज़ हो रही है. दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी कंट्री. नेक्स्ट, कट इन एक्सपेंडिचर. हाँ, दिस इज़ कैन बी हेल्पफुल कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करे, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो सोशल वेलफेयर विल बी डिक्रीज. सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा. सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम.
सेकेंड इज फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू में सिर्फ रेवेन्यू आएगा, लेकिन फिजिकल मीन्स व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स. टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, एंड टोटल रिसिप्ट्स मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स. ओके, तो टोटल मीन्स आपके पास ये होगा, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी जब भी कम है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो दैट इज़ फिजिकल डेफिसिट. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ टू मैनेज फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने का एक ही सिंपल है, ओनली बोरोइंग्स. ओके, तो इससे कंट्री में क्या क्या इम्प्लीकेशंस दिखेंगी. इट मीन्स इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मीन्स दैट द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज. नेशनल डेप्ट, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग्स करेंगी तो इससे कंट्री के ऊपर कर्ज बढ़ेगा और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही एक रॉन्ग सिंबल होगा. यस, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट, लो जीडीपी. अब पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम है तो जीडीपी भी कम होगा. क्राउडिंग आउट, अब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट विल टेक अप ऑल द मनी फॉर द नेसेसरी वर्क. तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए पैसा बचेगा ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए. दैट इज़ क्राउडिंग आउट, पैसों की कमी, ड्रॉट ऑफ मनी, ड्रॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर. इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, जब भी कोई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग्स करती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, तो उसकी जो गुडविल है वो इंटरनेशनल मार्केट में लो हो जाती है. तो बेटा दीज आर द इम्प्लीकेशंस. इस तरीके की कंडीशन आ सकती है अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा टाइम तक रहता है. थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट इज़ वेरी इजी. प्राइमरी डेफिसिट वी कैन कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट. अगर फिजिकल डेफिसिट आपको पता है और उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो आपके पास प्राइमरी डेफिसिट आ सकता है. एंड द इम्प्लीकेशंस फॉर प्राइमरी डेफिसिट सेम एज fiscal deficit. So what we have studies budget deficit when government expenditure are greater than government receipts. गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा, इनकम कम है, दैट इज़ बजट डेफिसिट. और उसके तीन पार्ट है, रेवेन्यू, फिजिकल एंड प्राइमरी. रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तब तो सिर्फ रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा. फिजिकल मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट. गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रिसिप्ट से. टोटल मीन्स कैपिटल प्लस रेवेन्यू, तो फिजिकल डेफिसिट होगा. और प्राइमरी डेफिसिट मीन्स फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट. सो डियर स्टूडेंट, and the next and last topic is balance and unbalanced budget. Balanced budget means, simply we all know balance means when total expenditure of the government equals to total receipts. अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स इक्वल है, दैट इज़ द बैलेंस, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. बट व्हाट अबाउट द अनबैलेंस. अगर अनबैलेंस का मतलब क्या होगा, अनबैलेंस मीन्स दैट बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है. तो या तो हमारे रिसिप्ट्स ग्रेटर हैं एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट के, या रिसिप्ट जो है वो कम है एक्सपेंडिचर से. तो टू कंडीशन कैन बी हियर. सो unbalance means surplus or maybe deficit. So first is surplus. Surplus means when government receipts are greater than government expenditure. This condition is very important condition, but लगता नहीं है किसी कंट्री में इस तरह की कंडीशन होती है. mainly in like India where the resources are always be deficit. तो surplus budget में गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम है, दैट इज़ सरप्लस बजट. तो ये तब हो सकता है जब गवर्नमेंट अपनी रिसिप्ट्स को खर्च ही ना करे पब्लिक के लिए, पब्लिक एक्सपेंस के लिए. एंड नेक्स्ट इज डेफिसिट बजट. इट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स. जब दोनों इक्वल है दैट इज़ तो बैलेंस बजट. व्हेन बोथ आर इक्वल दैट इज़ द बैलेंस बजट. बट बोथ आर नॉट इक्वल, तो देर विल बी टू कंडीशन. मे बी रिसिप्ट्स ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर. इफ रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर देन द कंडीशन विल बी surplus budget. Or when the expenditure are greater than receipts, so the condition is deficit budget. So dear student, it's all about your chapter. So we have completed all the points. So do your work very neat and clean way in your notebook, dear students. And beta, if you are facing any doubt, so you can call me without hesitation. Don't hesitate to ask your doubts. Okay, so stay blessed, stay safe, stay at home.